السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اقوام مصطفیٰ میں خوش آمدید۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے لاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیارے آقا حضرت محمد کے پیارے ارشادات اور اسلامی تعلیمات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اقوام مصطفیٰ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس نیک پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، جزاک اللہ۔ تقریر کا عنوان: قیامت کی 100 نشانیاں۔ میرے محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہم سب کے ایمان کی بنیاد اور ہماری آخرت کی فکر کا مرکز ہے۔ وہ موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد نے اپنی امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اپنے ہمیں قیامت آنے سے پہلے کی وہ تمام نشانیاں بتا دی ہیں تاکہ ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: علامان صغر چھوٹی نشانیاں اور علامان کبر بڑی نشانیاں۔ آئیے آج ہم ان 100 نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلا حصہ: قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نبی کریم کی بعثت اور وفات، اب آخری نبی ہے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح قریب بھیجے گئے ہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کفار مکہ کے مطالبے پر اب کے اشارے سے چاند کا پھٹنا قیامت کے قریب ہونے کی وہ دلیل ہے جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ بیت المقدس کی فتح، نبی کریم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں یروشلم فتح ہوگا۔ یہ حضرت عمر اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں پوری ہوئی۔ طاعون امواس، شام کے علاقے امواس میں ایک خطرناک وبا طاعون پھیلے گی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوں گے۔ یہ نشانی بھی دون فاروقی میں پوری ہو چکی ہے۔ مال و دولت کی کثرت، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ ذکو لے کر سڑکوں پر گھومیں گے لیکن کوئی غریب ذکو لینے والا نہیں ملے گا۔ فتنوں کا ظہور، ایسے فتنے اٹھیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ انسان صبح کو پکا مسلمان ہوگا لیکن شام تک کسی دنیاوی لالچ میں اپنا ایمان بیچ کر کافر ہو جائے گا۔ امانت کا اٹھ جانا، لوگوں کے دلوں سے دیانتداری ختم ہو جائے گی۔ امانت دار شخص کو بے وقوف اور خائن، دھوکہ باز کو عقل مند سمجھا جانے لگے گا۔ علم کا اٹھ جانا، علم کتابوں کے مٹنے سے نہیں اٹھے گا بلکہ سچے اور حق گو علماء کرام یک کے بعد دیگرے وفات پا جائیں گے اور زمین علم سے خالی ہو جائے گی۔ جہالت کا عام ہونا، جب سچے علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ زنا کی کثرت، بے حیائی اور زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ لوگ اسے گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اسے فیشن اور آزادی کا نام دے دیا جائے گا۔ شراب نوشی کا عام ہونا، لوگ شراب کا نام بدل کر جیسے آج کل مختلف مشروبات کے نام پر اسے حلال سمجھ کر پئیں گے۔ موسیقی اور گانے بجانے کی کثرت، اعلان موسیقی ہر گھر میں پہنچ جائیں گے جیسے آج موبائل فونز کے ذریعے سے، اور گانے والی عورتیں اور گلوکار عام ہو جائیں گے۔ قتل و غارت گری، ہرج انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا اس نے کیوں مارا اور مقتول نہیں جانتا ہوگا کہ وہ کس جرم میں مارا گیا۔ وقت کا تیزی سے گزرنا، وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح تیزی سے گزرتا محسوس ہوگا۔ اونچی عمارتوں پر فخر، ننگے پاؤں اور غریب چرواہے عرب کے بدو جو اونچی اونچی اور شاندار عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج یہ منظر عرب ممالک میں عام ہے۔ لونڈی کا اپنی مالکن کو جننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی اور مائیں اپنی بیٹیوں سے ایسے ڈریں گی جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے۔ موت کی تمنا کرنا، معاشی اور معاشرتی حالات اتنے خراب ہوں گے کہ انسان قبرستان سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس مردے کی جگہ آج میں اس قبر میں ہوتا۔ جھوٹے نبیوں کا دعویٰ، امت میں تقریباً 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ اب آخری نبی ہے۔ زلزلوں کی کثرت، زمین میں زلزلوں اور قدرتی آفات کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، بستیاں کی بستیاں تباہ ہوں گی۔ صلہ رحمی کا ختم ہونا، لوگ اپنے خونی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، چچا تایا سے معمولی باتوں پر تعلقات توڑ دیں گے اور غیروں کو دوست بنائیں گے۔ پڑوسیوں سے برا سلوک، پڑوسی اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے پڑوسی کے دکھ درد سے بے خبر ہوں گے۔ دھوکے کے سال، ایسے سال آئیں گے جن میں سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے مکار انسان کو سچا مانا جائے گا۔ نااہل لوگوں کو حکمرانی ملنا، جب ملک اور اداروں کے معاملات نااہل، کرپٹ اور جاہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ مساجد کی آرائش، لوگ مسجدوں کو خوبصورت بنانے پر لاکھوں خرچ کریں گے لیکن ان کے دل ہدایت سے اور مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ عورتوں کا لباس پہن کر ننگا ہونا، عورتیں ایسا باریک اچست
तंग लिबास पहनेंगी कि जिस्म के खदोखाल नुमायां होंगे। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगी। औरतों के सर बख्ती ऊंटों के कोहान जैसे, औरतें अपने बालों का जोड़ा सर के ऊपर इतना ऊंचा बांधेंगी जो दूर से ऊंट के कोहान जैसा लगेगा। मर्दों और औरतों की मुशाबहत, मर्दों का लिबास, बाल और अंदाज औरतों जैसा हो जाएगा और औरतें मर्दों की तरह दुखने की कोशिश करेंगी। सूद, रिबत का आम होना, माशी निज़ाम ऐसा हो जाएगा कि कोई शख्स सूद से नहीं बच सकेगा। अगर कोई सूद नहीं खाएगा तब भी उसकी गिरद जरूर इस तक पहुंचेगी। हलाल व हराम की तमीज खत्म होना, इंसान पर दौलत की ऐसी हवस सवार होगी कि उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि इसका रिज्क हलाल है या हराम। रिश्वत का आम होना, लोग अपना हक मारने या नाजायज काम करवाने के लिए रिश्वत को मिठाई, हदिया या तोहफा का नाम देकर लेंगे। तिजारत का बहुत ज्यादा फैलना, तिजारत इतनी आम हो जाएगी कि महंगाई के पेश नजर औरतें घर से निकलकर अपने शौहर का कारोबार में हाथ बटाएंगी। लिखने पढ़ने का आम होना, कलम का ज़हूर होगा, डिग्रियां और यूनिवर्सिटियां बहुत होंगी लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों में अमल और अखलाक की कमी होगी। झूठी गवाही की कसरत, लोग चंद पैसों, मुफादात या दोस्ती निभाने के लिए अदालतों में खुले आम झूठी गवाहियां देंगे। सच्ची गवाही को छुपाना, मुआशरे में जुल्म इतना होगा कि हक बात कहने और सच्ची गवाही देने से लोग डरेंगे। गैरुल्लाह की कसम खाना, बात बात पर माँ बाप की, सर की और दूसरी चीजों की कस्में खाई जाएंगी जो कि शिर्क के जुमरे में आता है। सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम करना, सलाम आम करने की संत खत्म हो जाएगी। लोग राह चलते हर मुसलमान के बजाय सिर्फ अपने जानने वालों को सलाम करेंगे। अचानक मौत की कसरत, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ब्रेन हेमरेज और ट्रैफिक हादसात की वजह से अचानक अमवात का सैलाब आ जाएगा। बाजारों का करीब होना, फासले सिमट जाएंगे। आज इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग और तेज सवारियों ने दुनिया को वाकई सुकेड़ कर एक गांव बना दिया है। झूठ का रिवाज, लोग सिर्फ अपनी महफिलों को गरमाने और लोगों को हंसाने के लिए झूठे लतीफे और कहानियां गेड़गे। गाली गलोह का आम होना, लोगों की ज़बानें इतनी गंदी हो जाएंगी कि बात बात पर गाली देना एक मामूल बन जाएगा। बूढ़ों का काले खिजाब से बाल रंगना, बूढ़े लोग अपनी उम्र छुपाने और खुद को जवान दिखाने के लिए काला रंग, ब्लैक डाइज बकसरत इस्तेमाल करेंगे। बुख्ल और लालच का बढ़ना, लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत और माल का लालच इस कदर भर जाएगा कि वो अल्लाह की राह में खर्च करने से घबराएंगे। रियाकारी, दिखावा, हज, उम्रा, ज़िक्र गरज हर नेक अमल सिर्फ लोगों को दिखाने, तस्वीर खिंचवाने और दुनियावी शोहरत के लिए किया जाएगा। दुनिया के लिए दीन का इल्म हासिल करना, ऐसे नाम निहाद उलमाए किराम पैदा होंगे जो दीन का इल्म सिर्फ इसलिए सीखेंगे ताकि मिंबर से पैसे और शोहरत कमा सकें। बारिशों में बरकत का ना होना, बारिशें बहुत होंगी, सैलाब आएंगे लेकिन उनसे फसलों और पैदावार में बरकत के बजाय तबाही आएगी। जालिमों की इज्जत करना, मुआशरे के गुंडों और बदमाशों की उनके शर से बचने के लिए इज्जत की जाएगी और उन्हें आगे बिठाया जाएगा। कमीने लोगों का सरदार बनना, कौम की क़यादत ईमानदारों के बजाय मुआशरे के सबसे गिरे हुए और करप्ट तरीन लोगों के हाथ में आ जाएगी। तकदीर को झुटलाना, लोग अल्लाह की तकदीर पर शको करेंगे, सितारों की चाल और इल्म नुजूम हॉरोस्कोप्स पर अंधा यकीन रखेंगे। पुलिस के जुल्म में इजाफा, जालिम हुक्मरानों के ऐसे अहलकार होंगे जो बिलावजा अवाम को मारेंगे, उनके कूड़े गाय की दम की तरह लंबे होंगे। घरों को सजाने का मुकाबला, लोग अपने घरों के अंदरूनी डिजाइन, पर्दों और फर्नीचर की आराइश पर फजूल खर्ची और दिखावे की इंतहा कर देंगे। मसाजिद में शोर गुल, मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाएगा। वहां दुनियावी बातें, लड़ाई झगड़े और दुनियावी आवाजें बुलंद की जाएंगी। कुरान को गाने के अंदाज में पढ़ना, कारी सिर्फ अपनी खूबसूरत आवाज दिखाने के लिए कुरान पढ़ेगा ताकि लोग वाह वाह करें, दिलों में खौफ खुदा नहीं होगा। औरतों की तादाद में बेपना इजाफा, जंगों और खतरनाक बीमारियों से मर्दों की अमवात ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द होगा। दरिंदों का इंसानों से बात करना, क़यामत के करीब जंगली दरिंदे और जानवर इंसानों से बाकायदा गुफ्तगू करेंगे। बेजान चीजों का इंसान से बात करना, इंसान की जूती का तस्मा अकूड़ा इसे खबर देगा। आजकल के स्मार्टफोन्स, घड़ियां और सेंसर्स उसकी जिंदा मिसाल हैं। रान का इंसान को खबर देना, इंसान के जिस्म का अपना हिस्सा रान इसे बताएगा कि इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर वालों ने क्या किया। दरियाए फरात से सोने का पहाड़ निकलना, इराक में दरियाए फरात का पानी सूख जाएगा और उसकी तह से सोने का एक बहुत बड़ा खजाना नमूदार होगा। सोने पर खूनरेज जंग, इस सोने पर कब्जा करने के लिए दुनिया भर की ताकतें लड़ेंगी और हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। हर कोई कहेगा कि शायद मैं ही बच जाऊं। सरजमीन अरब का दोबारा सरसब्ज होना, अरब के खुश्क रेगिस्तानों में दोबारा नहरें जारी होंगी और सब्जा उगेगा। सऊदी अरब में आजकल ये तब्दीली आना शुरू हो गई है। आसमानी बिजलियों का ज्यादा गिरना, क़यामत के करीब आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात इस कदर बढ़ जाएंगे कि अमवात आम हो जाएंगी।
रूमियों मगरबी ताकतों की अक्सरियत दुनिया में रूमियों यानी ईसाइयों और मगरबी दुनिया की आबादी ताकत और गलबा उरूज पर होगा। मुसलमानों और रूमियों के दरमियान सुलह, एक वक्त आएगा कि मुसलमान और रोमन ईसाई से आपस में एक मुआहदा करेंगे और मिलकर एक तीसरे मुश्तरका दुश्मन से जंग करेंगे। रूमियों का धोखा देना, इस मुश्तरका दुश्मन को हराने के बाद रूमी धोखा देंगे और 80 झंडों के तले मुसलमानों को खत्म करने के लिए जमा होंगे। अल-मुलाहम अजीम तरीन जंग मुसलमानों और काफिरों के दरमियान शाम सीरिया के इलाके में तारीख की सबसे बड़ी और खूनरेज जंग होगी, जिसमें बेशुमार खून बहेगा। कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल की बगैर हथियारों के फतह, एक वक्त आएगा कि मुसलमान तुर्की के शहर कुस्तुनतुनिया को बगैर जंग के सिर्फ अपनी तकबीरात अल्लाह अकबर की गूंज से फतह कर लेंगे। सुफियानी का ज़हूर, मुल्क शाम के इलाके से एक जालिम और दरिंदा सिफत शख्स निकलेगा जो मुसलमानों का बेदरेग खून बहाएगा। कहतान से एक शख्स का निकलना, कबीला कहतान का एक ताकतवर और साले आदमी उभरेगा जो लोगों की ऐसी शानदार क़ियादत करेगा कि सब उसके फरमाबरदार होंगे। मदीना मुनव्वरा का वीरान होना, एक वक्त ऐसा आएगा कि सबसे बेहतरीन शहर होने के बावजूद मदीना मुनव्वरा लोगों से खाली हो जाएगा और वहां जंगली जानवर घूमेंगे। हबशा के एक शख्स के हाथों कबा का ढाया जाना, अफ्रीका हबशा का एक पुतली टांगों वाला सियाफाम शख्स खाना कबा पर हमला करेगा और उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। मुसलमानों का दुनिया में जलील होना, कुफार मुसलमानों के वसाइल पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने पर टूटते हैं। मुसलमान तादाद में समंदर की झाग की तरह ज्यादा होंगे, लेकिन उनके दिलों में मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत होगी। कुरान का सीनों और कागजों से उठ जाना, एक रात ऐसी आएगी कि सुबह लोग उठेंगे तो कुरान के हुरूफ ना किताबों में होंगे और ना ही हाफिजों के सीनों में कुछ बाकी बचेगा। सिर्फ बोले लोगों का बचना, लोगों को दीन का अलिफ बे भी मालूम नहीं होगा। सिर्फ कुछ बूढ़े कहेंगे कि हमने अपने बड़ों को ला अला इल्ला अल्लाह कहते सुना था, इसलिए हम भी पढ़ लेते हैं। बुत परस्ती की तरफ वापसी भी शिर्क इस कदर आम हो जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा के कुछ कबीले दोबारा पुराने बुतों की पूजा और तवाफ शुरू कर देंगे। मोमिन का ख्वाब सच्चा होना, क़ियामत के करीब जब हक छप जाएगा तो सच्चे मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा, अल्लाह इसे ख्वाबों के जरिए सच्ची रहनुमाई देगा। अच्छी सवारियों का रिवाज, लोग ऐसी आरामदेह सवारियों पर मसाजिद के दरवाजों तक आएंगे जो बड़े घरों जैसी होंगी। आज की जदीद और लग्जरी गाड़ियां इसकी वाज़ेह मिसाल है। मर्दों का रेशम पहनना, सोना और रेशम मर्दों पर हराम है, लेकिन उम्मत के लोग इसे फैशन समझकर हलाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। जालिम हुक्मरान और मुनाफिक वजीर, मुआशरे का नक्शा यह होगा कि हुक्मरान जालिम होंगे, उनके वज़रा गुनाहगार होंगे और उनके साथ खड़े होने वाले उलमा मुनाफिक होंगे। चांद का बड़ा दिखाई देना, महीने का नया चांद ज़ाहिरी तौर पर इतना मोटा और बड़ा होगा कि लोग देखकर हैरान होंगे और कहेंगे कि ये एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिन का चांद लगता है। बाजारों में बेबरकती, दुकानें, मॉल्स और बाजार तो बहुत भरे होंगे, तिजारत खूब होगी, लेकिन इस कमाई में सुकून और बरकत नाम की कोई चीज नहीं होगी। अल्लाह के जिक्र से शर्माना, लोग मसाजिद में जमा तो होंगे मगर दिल सख्त होंगे, तन्हाई में अल्लाह के खौफ से रोने वाले और जिक्र करने वाले नायाब हो जाएंगे। हाक का खत्म होना, शर्म हाक उठ जाएगी, औरतें बाजारों में बेबाक होकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। खानदानी निजाम की तबाही, मियाँ बीवी के दरमियान बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, बात बात पर झगड़े होंगे और तलाक की शरह आसमान को छूने लगेगी। गुनाहों पर फख्र, इंसान गुनाह करके छुपाने और तौबा करने के बजाय इसे फख्र के तौर पर सोशल मीडिया पर लगाएगा और दोस्तों को मजे लेकर बताएगा। दुनियादारों की तज़ीम, किसी शख्स की इज्जत इसके तक़वा किरदार की वजह से नहीं होगी, बल्कि सिर्फ इसकी बड़ी गाड़ी, बंगले और दौलत को देखकर की जाएगी। मुस्लिम ममालिक पर कुफ्फार का कब्जा, काफिर ताकतें मुसलमानों के मुल्कों, उनके खजानों, तेल और माइशत पर अपना मुकम्मल कब्जा जमा लेंगी। नमाजों को ज़ाय करना, लोग दुनिया की मसरूफियात, नौकरी और कारोबार के पीछे नमाजें छोड़ देंगे, उन्हें उनके असल वक्त से गुजार कर पड़ेंगे। दीन पर चलना आग का अंगारा पकड़ने के बराबर होगा। जो शख्स संत और दीन पर सख्ती से अमल करेगा, इसका अपना खानदान और मुआशरा इसका मजाक उड़ाएगा और इसे तन्हा कर देगा। इमाम मेहदी का ज़हूर, ये छोटी निशानियों की आखिरी और बड़ी निशानियों का आगाज होगा। हजरत मोहम्मद की नस्ल फातिमी से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, जो उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेंगे। इमाम मेहदी की खिलाफत, वो मक्का में ज़ाहिर होंगे, 7-8 साल तक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे और जमीन को जुल्म के बजाय अदल इंसाफ और खुशहाली से भर देंगे। दूसरा हिस्सा, क़यामत की बड़ी निशानियां। सामेन गिरामी, जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा तो फिर 10 बड़ी निशानियां लगातार इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे तस्बीह का धागा टूटने से दाने एक के बाद दीगरे बगैर रुके गिरते। दज्जाल का खुरूज, ज़हूर, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और ख़तरनाक फितना होगा। दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो खुदाई का दावा करेगा, आसमान से बारिशें बरसाएगा,
और मर्दों को जिंदा करके दिखाएगा ताकि लोगों का ईमान लूट सके। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम का नुज़ूल, दज्जाल के फितने और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को ख़त्म करने के लिए शाम के शहर दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे आसमान से नाजिल होंगे। दज्जाल का कत्ल और इस्लाम का गलबा। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और इसे फ़लस्तीन के इलाके बामलाद के मकाम पर अपने नेज़े से कत्ल करेंगे। इसके बाद दुनिया में सिवाय इस्लाम के कोई दीन बाकी नहीं रहेगा। आजवज माजवज का खुरूज, ये एक इंतहाई जालिम, जंगजू और वहशी कौम है जिसे हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद किया था। ये दीवार तोड़कर निकलेंगे और जमीन पर ऐसी तबाही मचाएंगे कि बुहेरा तिब्रिया का सारा पानी पीकर उसे खुश्क कर देंगे। आजवज माजवज की हलाकत कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम और मुसलमानों की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा जिसकी वजह से करोड़ों की तादाद में ये सब एक ही रात में सड़कर मर जाएंगे। खफन मशरिक में जमीन का धंसना। मशरिक के इलाके में एक इंतहाई हौलनाक जलजला आएगा जिसमें जमीन फटेगी और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिंदा लोगों समेत जमीन के अंदर धंस जाएगा। खफन मगरिब में जमीन का धंसना। इसी तरह मगरिब वेस्ट के इलाकों में भी एक खौफनाक जलजला आएगा और वहां भी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने ऊपर मौजूद हर चीज के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। खफन जज़र अल अरब में जमीन का धंसना। जजीरा नुमा अरब, सऊदी अरब के आसपास के इलाकों में तीसरा बड़ा और आखिरी जमीनी धंसाव लैंडस्लाइड होगा जो तबाही फैला देगा। दुखान, आसमान से धुआं। आसमान से एक ऐसा पुरस्रार धुआं जाहिर होगा जो पूरी जमीन को 40 दिन तक अपनी लपेट में ले लेगा। इस धुएं से मोमिनों को सिर्फ हल्का सा जुकाम होगा जबकि काफिरों का सांस फूल जाएगा और उनके जिस्म सूज जाएंगे। दाब अलर्स का निकलना। जमीन का जानवर मक्का की सफा पहाड़ी जलजले से फटेगी और इसमें से एक अजीब और गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से साफ इंसानी जबान में बात करेगा और हजरत मूसा के असा से मोमिन और काफिर के माथे पर निशान महर लगाएगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना और यमन से आग का निकलना। फिर वो सुबह आएगी जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। इस दिन तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। इसके कुछ अरसा बाद यमन की तरफ से एक हौलनाक आग निकलेगी जो बाकी मानदा इंसानों को हाँक कर नान हश्र शाम के इलाके की तरफ ले जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से एक ठंडी हुआ चलेगी जिससे तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज हो जाएगी। दुनिया में सिर्फ बदतरीन कुफार बचेंगे जिन पर हजरत इसराफील अलैहि अस्सलाम सूर फूंकेंगे और ये कायनात फना होकर रेजा रेजा हो जाएगी। मेरे अजीजों, ये 100 निशानियां कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि इस कायनात के खालिक और उसके सच्चे नबी के फरमुदात हैं। इनमें से बेशतर निशानियां हम अपने घरों, गली कूचों और खबरों में रोज देख रहे हैं। वक्त तेजी से रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। इससे पहले कि सूरज मगरिब से निकल आए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करने आ जाए, आइए आज, अभी और इसी वक्त सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अपने अखलाक को संवारें, अल्लाह के हुकूक अदा करें, बंदों के हुकूक अदा करें और आने वाली इस अब्दी जिंदगी की तैयारी करें जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हमें दज्जाल और उन तमाम फितनों से महफूज रखे, हमें खात्मा बिलखैर नसीब फरमाए और रोज़न महशर अपने प्यारे हबीब की शफात नसीब फरमाए। अस्सलाम अलैकुम।